So today's topic is total cell DNA purification from the bacteria. So आज हम बात करने वाले हैं कि बैक्टीरिया से हम किस तरीके से DNA का purification करते हैं. This is one of the most important topic when you're doing your MSc, even I think in BSc also. But basically, if you're doing MSc biotechnology, there is in recombinant DNA technology there is one chapter which is you have to study. So for that we are today seeing total cell DNA purification from the bacteria. Before that, we need to understand what is total cell DNA. Okay. So total cell DNA, it consists of genomic DNA of the organism along with the additional DNA molecules, example plasmid. Basically होता क्या है कि जो टोटल सेल डीएनए के अंदर हमारा क्या क्या आता है, जीनोमिक डीएनए आता है. वी ऑल नो व्हाट इज जीनोमिक डीएनए. along with this जो एडिशनल डीएनए प्रेजेंट होते हैं, we know that in bacteria along with the genomic DNA there is another DNA, additional DNA is also present, which is known as plasmid. So when we talk about a total cell DNA, it includes both genomic DNA as well as plasmid DNA. Okay. It may from of bacteria, from a plant, or from animal cell. There are 4-stage preparation of total cell DNA when we are preparing, when we are doing total cell DNA purification. There is a 4 main stage which we need to follow. The first is a culture bacteria is grown and then harvested. Second is the cell are broken open to release their content. Next one, the cell extract is treated to remove all component except the DNA. Fourth, resulting DNA is concentrated. So this is overall picture of preparation of total DNA from a culture of bacteria. The first thing is that we need to culture a bacteria. For that we need to grow the bacteria and then we have to harvest that bacteria. Okay. So जब भी हम किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कुछ मीडिया की जरूरत पड़ती है. So what we are using in that case is M9 media and LB media. These two are media. हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि M9 media और LB media की क्या कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं. ओके. तो पहले हम बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे, उसको ग्रो करेंगे और हार्वेस्ट करेंगे. Then we will do centrifugation, which will be done in 8000 rpm for 10 minutes. After that the cell are removed and broken, the given a cell extract. ठीक है. उसके बाद जो भी बैक्टीरिया सेल है उसको हम क्या करेंगे कि ब्रेक कर देंगे और जो भी सेल एक्सट्रैक्ट है उसको हम निकाल देंगे. तो अब सेल को ब्रेक कैसे करते हैं, तो उसके लिए या तो हम इरिटिए यूज करते हैं या लाइसोजाइम यूज करते हैं या एसटीएस यूज करते हैं. आफ्टर दैट द डीएनए इज प्यूरिफाइड फ्रॉम द सेल एक्सट्रैक्ट. और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, डीएनए का क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे. प्यूरिफिकेशन जो करते हैं वो बेसिकली हम या तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फॉलो करते हैं या ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड एंजाइम डाइजेशन फॉलो करते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज द डीएनए इज कंसंट्रेटेड. फिर हम इथेनॉल प्रेसिपिटेशन के थ्रू डीएनए को क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं. सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ टोटल सेल डीएनए प्यूरिफिकेशन फ्रॉम द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया. वी विल सी ईच स्टेप इन डिटेल इन फर्दर वीडियोस. The first step is growing and harvesting of a bacteria culture. Okay. तो क्या करें कि बैक्टीरिया ग्रो बैक्टीरियल सेल इन लिक्विड कल्चर. ठीक है. तो बेसिकली जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो लिक्विड कल्चर, को हम ब्रॉथ कल्चर बोलते हैं, उसमें ग्रो करते हैं. इट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट अलाउ बैक्टीरिया टू ग्रो एंड डिवाइड. बेसिकली ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए और डिवाइड करने के लिए जरूरत पड़ती है. 2 growth media जो बेसिकली हम यूज करते हैं, the one is M9 media and another one is LB media. Now we will understand first M9 media. M9 media is also known as defined media. Why? Because all the components are known. Media contain a mixture of inorganic nutrients to provide essential elements such as nitrogen, magnesium and calcium, glucose to supply carbon energy. ये मीडिया के पास क्या होता है, इसकी जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ग्लूकोज, वो सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एडिशनल ग्रोथ फैक्टर आर एडेड सच एज विटामिन और ट्रेस एलिमेंट टू सपोर्ट बैक्टीरिया ग्रोथ. इसमें क्या होता है कि एडिशनल ग्रोथ फैक्टर ऐड किए जाते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, जैसे हम ट्रेस एलिमेंट कुछ हो गए, उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सके. ठीक है. ये सारे कंपोनेंट हैं और ये उनकी यूनिट है. अब अनडिफाइंड मीडिया क्या होता है, जिसको हम एलबी मीडिया बोलते हैं या लूरिया बर्टानी मीडिया. ओके. इफ the pronunciation is wrong, I'm sorry for that, but that's what I know. The precise identity and quantity of its component are known. Basically इसमें क्या होता है कि not known, sorry,
जैसे कि M9 मीडिया में क्या था कि सारी क्वांटिटी पता थी, बट इन केस ऑफ LB मीडिया जो प्रिसाइज आइडेंटिटी और क्वांटिटी है वो क्या होती है, अननोन होती है। दिस इज बिकॉज टू इंग्रेडिएंट ट्रिप्टोन एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि इसमें दो जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, द वन इज ट्रिप्टोन एंड अदर वन इज ईस्ट एक्सट्रैक्ट। Tryptophan and yeast extract are complicated mixture of unknown chemical compound. Okay, the first is tryptophan. It is a assortment of peptide formed by the digestion of casein by the protein trypsin. वही casein के digestion से हमें क्या मिलता है, protein trypsin जब केजिन का डाइजेशन करता है तो हमें ये ट्रिप्टोन मिलता है। ये क्या करता है, अमाइनो एसिड और जो भी स्मॉल पेप्टाइड जरूरत होती है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वो प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट इज ईस्ट एक्सट्रैक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ सेल कंटेंट ऑफ ईस्ट विदाउट सेल वॉल। बेसिकली ईस्ट एक्सट्रैक्ट में होता क्या है कि इसमें ईस्ट होता है लेकिन इसका सेल वॉल जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। इट इज रिच इन विटामिन, स्पेशली विटामिन बी। तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट में विटामिन बी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद द शुगर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो भी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है शुगर और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अलावा उन्हें प्रोवाइड करता है। एलबी मीडिया नीड्स नो फर्दर सप्लीमेंटेशन। तो एलबी मीडिया में कोई फर्दर सप्लीमेंटेशन या जो ट्रेस एलिमेंट या जो हम M9 मीडिया में ऐड कर रहे थे उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके मेन कंपोनेंट क्या है, ट्रिप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट और NaCl, और इसका क्या है मीडियम कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये क्या है, एस्टिमेशन ऑफ बैक्टीरिया सेल नंबर बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर हमको पता करना है कि बैक्टीरिया कितना है तो हम थ्रू क्या कर सकते हैं कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पता करके हम पता कर सकते हैं। A sample of the culture is placed in a glass cuvette and light with wavelength of 600 nanometers shone through. The amount of light that passes through the culture is measured and the OD also called the absorbance calculated as. Here 1 OD unit is equal to log 10 intensity of transmitted light upon intensity of incident light. ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी कल्चर मीडिया अगर हमें पता करना है कि वो बैक्टीरिया सेल का नंबर क्या है तो हम करते क्या है, क्यूवेट लेते हैं। क्यूवेट में हम अपना बैक्टीरिया कल्चर रखते हैं और जो इंसिडेंट लाइट होती है ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ वो हम पास कराते हैं। ठीक है, और जो एब्जॉर्बेंस होता है, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, जो ट्रांसमिट होती है, डिटेक्टर जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट कर लेता है और हमें क्या होता है बता देता है। तो इसको पता करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यही है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग बैक्टीरिया बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमने बैक्टीरिया को ग्रो कर लिया, कल्चर कर लिया, अब हमें उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर द हार्वेस्टिंग हम सेंट्रीफ्यूगेशन को करते हैं। हार्वेस्टिंग द सेल इज डन बाय पेलेटिंग the cell in a centrifuge about pouring out the culture media. Spin at 8000 rpm for 10 minutes. ये बैक्टीरिया सेल कल्चर है, इसको हम स्पिन करते हैं 8000 rpm पे फॉर 10 मिनट के लिए, और जो बैक्टीरिया का पैलेट है, जो बैक्टीरिया होता है हमें वो पैलेट में मिल जाता है। अब प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। अब हम सेल एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। बैक्टीरिया सेल इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिजिड वॉल। ठीक है, हमको पता है कि जो बैक्टीरिया सेल होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, उसमें रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है, वी ऑल नो दैट पेप्टिडोग्लाइकन से बैक्टीरिया मिलके बना, मतलब उसका सेल वॉल बना होता है। वो सेल वॉल बहुत रिजिड होता है, उसको हमें ब्रेक करना होता है अगर हमें अंदर से उसका जीनोमिक डीएनए निकालना है। तो बेसिकली दो टेक्निक हम फॉलो करते हैं सेल को ब्रेक करने के लिए। द फर्स्ट इज फिजिकल मेथड एंड द वन इज केमिकल मेथड। In the physical method, cells are disrupted by a mechanical force, and in chemical method, cells are lysed by treating with chemical agent. Okay. Example: weakening of the cell wall of E. coli is done by lysozyme and ethylene diamine tetraacetate. अगर जो E. coli होता है, अगर हमें उसको सेल वॉल को वीक करना होता है या ब्रेक करना होता है तो हम लाइसोजाइम, एक एंजाइम होता है, उसका यूज करते हैं, या फिर हम EDTA का क्या करते हैं, यूज करते हैं। So in case of chemical method, we have first have a lysozyme. Okay. लाइसोजाइम होता है वो टीयर्स में, सलाइवा में, मिल्क में और म्यूकस में पाया जाता है। कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,4 बीटा लिंकेज बिटवीन N-acetyl मुरामिक एसिड एंड N-acetyl ग्लूकोसामाइन रेजिड्यू इन पेप्टिडोग्लाइकन। तो हमें जैसे बताया कि जो बैक्टीरिया होती है, अगर हम स्ट्रक्चर अगर आपने बैक्टीरिया का देखा होगा तो जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, अब बैक्टीरिया का जो ये सेल वॉल है, ठीक है, जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो इसको हमें क्या होता है, ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। और ये पेप्टिडोग्लाइकन की जो होती है ये N-acetyl मुरामिक एसिड और N-acetyl ग्लूकोसामाइन रेसिड्यू से मिलकर क्या होता है, बनाता है। इनके बीच में 1,4 बीटा लिंकेज होता है। तो हमारा जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है, इसी लिंकेज को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाता है। समझ में आया। अब नेक्स्ट EDTA, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट।
remove magnesium ion that are essential for preserving the overall structure of the cell envelope and also inhibit cellular enzyme that could degrade DNA. ठीक है, अब ADTA क्या करता है कि ये मैग्नीशियम आयन को क्या कर देता है, हमारा रिमूव कर देता है, जो कि इसेंशियल होता है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है सेल एनवेलप का, उसको पूरा प्रिजर्व करने के लिए। तो अगर सेल एनवेलप क्योंकि उसके अंदर है तो सेल एनवेलप को भी ब्रेक करने की जरूरत है, तो मैग्नीशियम आयन अगर रिमूव हो जाता है तो वो भी क्या होता है, प्रिजर्व नहीं रहता। एंड ऑल्सो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है सेलुलर एंजाइम्स को कि वो जो डीएनए है उसको ये डिग्रेड ना कर सके। ठीक है, द नेक्स्ट इज SDS। ओके, डिटर्जेंट सोडियम डोडेसिल सल्फेट एड द प्रोसेस ऑफ लाइसिस बाय रिमूविंग लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारा SDS होता है वो एक टाइप का डिटर्जेंट होता है। ठीक है, डिटर्जेंट होता है बेसिकली, और ये जो डिटर्जेंट होता है ये क्या करता है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, और जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद उसमें से लिपिड निकाल दोगे तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो सेल एक्सट्रैक्ट है उसको हम प्रिपरेशन करते हैं। तो नेक्स्ट, अब ये दिखाया है कि ये देखिए आपका ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें हम डिस्टर्ब करेंगे सेल वॉल को, इसमें हम EDTA का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर लाइसोजाइम का यूज करेंगे, और यूज करके क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा सेल मेम्ब्रेन को। सेल एक्सट्रैक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे अगेन। ठीक है, जो भी इनसॉल्युबल डेब्रीज है उनको हटाने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और जो सुपरनेटेंट होगा वहां पे हमारा DNA RNA प्रोटीन होगा, और जो पेलेट होगा वहां पे सेल डेब्रीज जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। अब हमने क्या किया, ग्रो कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, और उसके बाद हमने उसको क्या बोलते हैं, सेल एक्सट्रैक्ट को भी निकाल लिया। तो नेक्स्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA फ्रॉम अ सेल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब ब्रेक हो गया तो हमें DNA को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब जो बेसिकली हमने अभी देखा था स्ट्रक्चर में, बेसिकली होता क्या है कि जो ये इसके अंदर क्या होता है कि पैलेट में हमारा होता है जो भी हमारी सेल डेब्रीज है। ठीक है, और जो ऊपर का पार्ट होता है यहाँ पे क्या होता है, हमारा कई सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जिसमें क्या क्या रहता है, आपका DNA रहता है, RNA रहता है, प्रोटीन रहता है। ठीक है, अब हमें क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, DNA चाहिए, बाकी सारी चीजें तो हमको चाहिए नहीं। ये क्या करेंगे, एज अ कंटेनमेंट वर्क करेंगे, और हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको रिमूव करने का बेसिकली कंटेनमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या फिर ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड एंजाइम डाइजेशन। तो ये दो प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, DNA का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये है DNA में कंटेनमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, इनको हम डिग्रेडेशन करेंगे कंटेनमेंट्स का, तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ DNA जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब पहला मेथड जो हम फॉलो करते हैं वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टू प्यूरिफाई DNA फ्रॉम अ सेल एक्सट्रैक्ट। For that, we will first it separate molecules according to how tightly they bind to electrically charged particles present in the chromatography matrix or resins. Basically, ये molecules को separate करता है on the basis कि वो कितने tightly bind है electrically charged particles के साथ, जो कि chromatography matrix या resin में present है। DNA RNA both are negatively charged, so they bind positively charged resins. ठीक है, हमको पता है कि जो क्रोमेटोग्राफी का I will make a separate video for that, but अभी हम जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिवली चार्ज रेजिन्स उसमें भरे होते हैं, हमारा जो कॉलम होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, रेजिन्स जो है वो यहाँ पे ऐसे भरे होते हैं, और इनके साथ जब हम अपने सॉल्यूशन को डालते हैं तो ये क्या करेंगे, जो DNA और RNA हमको बहुत पता है कि दोनों क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो हमारा रेजिन्स है इसके साथ क्या करेंगे, जाके बाइंड कर लेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अटैचमेंट इज डिस्टर्बेड बाय ए साल्ट। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अटैचमेंट है वो साल्ट के द्वारा डिस्टर्ब हो जाएगा। बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द साल्ट कंसंट्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द रेजिन वन आफ्टर अनदर। तो हम जैसे जैसे साल्ट कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, एक एक करके जो भी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, DNA आने वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि पहले ये सेल एक्सट्रैक्ट है, इसमें आयन एक्सचेंज रेजिन्स है, इसमें हमने साल्ट ऐड करेंगे। जब हम साल्ट ऐड करेंगे तो पहले प्रोटीन और RNA जो है वो डिटैच्ड हो जाएंगे, और हमें क्या अलग जो हमारा कॉलम है उसमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जब उसमें हम और साल्ट डालेंगे तो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ जो DNA है वो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा।
द नेक्स्ट इज रिमूविंग कंटेनमेंट बाय ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड बाय एंजाइम डाइजेशन। तो हमने एक प्रोसेस देख लिया कि आयन एक्सचेंज करते हैं, दूसरा हम करते हैं बाय ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन। टू डीप्रोटोनाइज अ सेल एक्सट्रैक्ट इज टू ऐड फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म इन रेशियो 1:1। इसमें हम फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं 1:1 में। These organic solvent are precipitate protein but leaves the nucleic acid, DNA and RNA in aqueous solution. Basically ये करते क्या है कि ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं और न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए है उसको एक्वस सोल्यूशन में रहने देते हैं। Protease like pronase and proteinase K is added before phenol extraction which break down the polypeptides. इसमें हम प्रोनेस और प्रोटीनेस के को ऐड करते हैं बिफोर फिनॉल एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली ये करता क्या है कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड्स है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं, उनको ये ब्रेक कर देता है। प्रोनेस क्या है? प्रोटीएज विच इज एबल टू हाइड्रोलाइज द मोस्ट पेप्टाइड बॉन्ड। एंड प्रोटीएज के क्या है? Cleave the site in peptide bond adjacent to carboxylic group of aliphatic or aromatic amino acid. Ribonuclease are used for removing RNA. मतलब हम पहले प्रोटीन को रिमूव कर दिए, फिर हम उसमें राइबोन्यूक्लियस डाल देते हैं, जो क्या करता है आरएनए को रिमूव कर देता है, फिर हमें अल्टीमेटली बचता क्या है उसमें डीएनए। ये सेल एक्सट्रैक्ट है मिक्स विद फिनॉल, सेपरेट लेयर ऑफ सेंट्रिफिकेशन कर देंगे तो हमें सेपरेट लेयर मिल जाएगा। एक्वस लेयर में हमारा डीएनए और आरएनए रहेगा, ये इंटरफेस कोगुलेटेड प्रोटीन, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा फिनॉल रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें डीएनए मिल गया, अब हमें उसको कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल। इसके लिए हम जो फॉलो करते हैं प्रोसीजर विच इज नोन एज इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड, ये बहुत ही ज्यादा यूज मेथड किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट मोनोवेलेंट कैटायन सच एज सोडियम आयन एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस are less, absolute ethanol efficiently precipitate polymeric nucleic acid. तो सॉल्ट के प्रेजेंस में, जैसे कि कैटायन सच एज सोडियम आयन के प्रेजेंस में और टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पे जो हमारा इथेनॉल होता है वो क्या कर देता है, हमारा जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो उसको क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देता है। अगर आप सेल डीएनए को प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे जब हम ह्यूमन ब्लड से करते हैं, तो वहां पे भी हम इथेनॉल का यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए बेसिकली। With thick solution of DNA, the ethanol can be layered on the top of the sample, causing molecules to precipitate in the interface. ठीक है, ये ग्लास रॉड है, उसमें हम डाल देते हैं, उसमें जो डीएनए फाइबर जो है वो क्या होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। ये दो प्रोसेस हैं जो हम कर सकते हैं, एक तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, एक तो या फिर ये रॉड में ऐसे हमको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन। अब हमको डीएनए को हम कंसंट्रेट कर लिया, अब हम मेजर कैसे करेंगे कि डीएनए है कितना। So DNA concentration can be accurately measured using ultraviolet absorbance spectrophotometry. तो हम UV absorbance spectrophotometer का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डीएनए का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। एब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड एट 260 नैनोमीटर। हमको पता है कि डीएनए का जो एब्जॉर्बेंस करता है वो 260 नैनोमीटर पे करता है और प्रोटीन 280 नैनोमीटर पे। The amount of UV radiation absorbed by a solution is directly proportional to the amount of DNA in the sample. कि जितना amount of UV radiation absorb होता है by a solution of DNA, वो क्या होता है, directly proportional होता है to the amount of DNA in the sample. Ultraviolet absorbance used to check प्योरिटी ऑफ अ डीएनए प्रिपरेशन। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डीएनए की प्योरिटी चेक करने के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि विद अ प्योर सैंपल ऑफ डीएनए द रेशियो ऑफ द एब्जॉर्बेंस एट 260 एंड 280 नैनोमीटर इज 1.8। ठीक है, अगर जो प्योर सैंपल है तो उसका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा जो एब्जॉर्बेंस का वो 260 एंड 280 नैनोमीटर का, वो क्या होगा 1.8 होगा। अगर रेशियो लेस देन 1.8 है तो ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसी न किसी कंटामिनेशन का। अब कंटामिनेशन किसका हो सकता है, या तो प्रोटीन का हो सकता है या फिनॉल का हो सकता है। तो पहला चीज कि अगर हम अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कर रहे हैं तो हम डीएनए का कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हम प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं कि कितना ये डीएनए हमारा प्योर है या नहीं है। अगर कोई कंटामिनेशन है तो वो बता देगा, और हमको पता है कि कंटामिनेशन किसका हो सकता है, या तो प्रोटीन का हो सकता है या तो फिर फिनॉल का हो सकता है। ओके, थैंक यू।